नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। मेहमान लगातार लैंड कर रहे हैं, मंडपम तैयार है, दिल्ली की सड़कें आग बिछाकर अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। जी हां, स्वागत उस आयोजन के लिए जिस आयोजन से विश्व में भारत की धाक और बढ़े और आगे बढ़े। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। दिल्ली में विदेशी मेहमानों का आने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, जापान के पीएम फूमिया किशिदा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब इंतजार सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का है, जो कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 की बैठक कई मायनों में बहुत खास है। दुनिया के बाजार में पिछले कुछ सालों में भारत की ताकत बहुत बड़ी है। वहीं अमेरिका के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में कई देश टेंशन में भी हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान। आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 की बैठक में शामिल नहीं होंगे। आखिरकार G20 की अध्यक्षता से किस तरह से भारत वैश्विक मंच पर बड़ा खिलाड़ी बन रहा है और उसका असर दुनिया भर में किस तरह से हो रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान। Let me say that when we started India's presidency, very few people knew about digital public infrastructure and the open source model of it. This has been extensively taken forward by both the finance track and the Sherpa track in a very vigorous manner. And today's India's digital public infrastructure has been broadly accepted that this is the way to bring in financial inclusion, this is the way to do fast payments, this is the way to drive tech innovation of the future. And I think one of our great achievements, somebody had asked about key takeaways, while we are not talking at this stage about achievements, but I think one of the key takeaways of India's presidency is that the world acknowledges that India has truly revolutionized technology through the digital public infrastructure, which is a unique model. So its definition, its framework, its how we take it forward, all of this has come into discussion during India's G20 presidency. We've decided, that is on the 9th, they will first visit Indian Agricultural Research Institute because it's, again, credit goes to the Prime Minister. He didn't want it to be just a hoity-toity kind of experience. In addition to this, he wanted it to be a very substantial experience. And for that substantial experience, the morning hours are going to be spent in Indian Agricultural Research Institute, where they will meet some women farmers. They will also see some of the top-of-the-line labs. So everybody knows about ISRO, that is the space science of India, how good we are, but less people know about our agricultural potential. We were a nation which was deficient in food production, from low on food production to today surplus in food production is where India has reached. In terms of dairy farming to everything, we've showcased that we are number one when it comes to dairy farming. So people need to know that aspect of science also. So how good our labs are, how our scientists from the biological front have been working. So first experience will be about the millets, which is our traditional diet. Indians have been eating millets for a few thousand years. The grains which you find in Harappan civilization are actually millets. And from there the journey came, and wheat that we started eating in this larger quantity is a very recent phenomena. हम अपने पैनल पर चलें, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। आज देश का सवाल है, क्या भारत अमेरिका की नजदीकी से चीन टेंशन में है? पहला। दूसरा, मोदी बाइडेन कैसे दुनिया पर अपना असर दिखा रहे हैं? G20 की अध्यक्षता से भारत को क्या हासिल होगा? और आखिरी सवाल, मौजूदा वक्त में भारत की अहमियत दुनिया के लिए क्या है? ये 3-4 मूलभूत सवाल है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष गौतम, इंटरनेशनल सिक्योरिटी साइबर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी, वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमसे जुड़ेंगे। डॉक्टर आसिफ रमीज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार दुबई से जुड़ेंगे। अरविंद तेजावत हमारे साथ स्टूडियो में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार
डॉक्टर धीरज कौल, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, अमेरिका से हमसे जुड़ेंगे। शुरू अरविंद तेजावत जी आपसे करता हूं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अरविंद जी, मेरा कल भी यही सवाल था और पहला आज का यही सवाल होगा, बाद में आएंगे अमेरिका पे, G20 पे। भारत को इस आयोजन से, इस अध्यक्षता से, इस मेजबानी से क्या हासिल होगा? भारत को इस मेजबानी से बहुत कुछ हासिल होने वाला है। जैसा कि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ दरअसल अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है और लगातार जो बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं इस बात को कह चुके हैं, और अब भारत की उसमें स्थायी सदस्यता होना नहीं होना ये दरअसल समय की बात है, पर भारत इसके लिए उसके पीछे पीछे नहीं जा सकता है। दूसरा ये है कि जो इसका एजेंडा तैयार किया गया है उसमें बहुत सारे मसले हैं, जिसमें कि ग्रीन डेवलपमेंट है, महिलाओं का विकास है, उसके बाद में जो तकनीकी का ट्रांसफॉर्मेशन है, तकनीकी का ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है कि जो कार्बन टेक्नोलॉजी है उससे वापस हम बैटरी और सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ, तो वो एजेंडा है। अफ्रीका को इसमें शामिल करवाना है, यह सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि भारत ने कुछ खाड़ी देशों से और लैटिन अमेरिकी देशों से भी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। तो इन सब चीज़ों को करने से ये संदेश जा रहा है कि भारत में वह सारी क्षमताएं हैं जो एक विश्व के नेता होने में होनी चाहिए। और आप देखिए कि मज़ेदार बात यह कि जो मनमोहन सिंह जी साहब से जो मुलाकात हुई मोदी साहब की, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि विदेश नीति को लेकर जो कुछ किया जा रहा है उसमें यूक्रेन के मसले पर विपक्ष पूरी तरीके से, विपक्ष अर्थात कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं, तारीफ करी तारीफ कर दी। तो इन सब चीज़ों से ये कि भारत जो हासिल करने वाला है इसकी तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हो सकती है, पर संक्षेप में अगर कहा जाए तो यह है कि भारत जो एक विश्व नेता बनने की राह पर अग्रसर हो रहा है, और मुझे लगता है कि यही इसका एक बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है, डॉक्टर आसिफ रमीज जी भी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ। डॉक्टर आसिफ, खाड़ी देशों से भी कई देशों को बुलाया गया है, तो जो एक पॉलिसी अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था, यात्रा में प्रधानमंत्री गए थे, तो वो भी एक कनेक्ट जो है वो स्थापित करने की कोशिश है, एक मैसेज देने की कोशिश है G20 से। सबसे पहले मैं बताऊं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क भारत में इतना भव्य तरीके से G20 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसकी प्रेसिडेंसी है। और जो आपने अभी सवाल किया, ये कोई आज की नई बात नहीं है। वैसे तो एक ज़माने से और ख़ास तौर से अभी हमने देखा है कि किस तरीके से भारत को इस पूरे मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, चाहे आप बात कर लो सऊदी अरब की, यूएई की बात कर लो, आप अभी ओमान के देखें, उनके प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं, या फिर आप इजिप्ट की बात करें जो थोड़ा सा आगे अफ्रीका की तरफ जाता है। तो इस पूरे इलाके से एक बहुत ही घनिष्ठ, एक बहुत ही रिश्ता रहा है भारत का, और इसमें कई अवार्ड्स, कई इस तरीके के कल्चरल और पीपल टू पीपल कनेक्ट्स रहे हैं। लेकिन अभी इस G20 में खास तौर से अगर आप दो चीज पे ध्यान दें, हम ये जानते हैं कि भारत के जो 4 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं उसमें से 2 हमारे इस रीजन से हैं। एक नंबर 3 पे यूएई आ जाता है और नंबर 4 पे सऊदी अरब आ जाता है। 4 लार्जेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसी सिचुएशन में जब हम ट्रेड की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इस बार जो भारत ने बहुत ही स्मार्टली इस पूरे अतिथि देवो भव, ये कहते हैं ना हमारे वन वर्ल्ड, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये जो एक थीम लेकर जो चले वसुधैव कुटुंबकम का, उससे इसका एक सही तरीके से आउटरीच हुई है पूरी दुनिया तक। 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई, 125 से ज्यादा और कंट्रीज से व्यूज लिए गए। तो उसमें जो प्राथमिकता दी गई है वो इस रीजन को जरूर दी गई, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। ट्रेड से बहुत ज्यादा अहमियत है, जियोपॉलिटिकल इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और खास तौर से आप अगर देखें तो लार्जेस्ट जो इंडियन डायस्पोरा अमेरिका के बाद, अमेरिका में तो कुछ वो भी होते हैं ना जो अपने सिटीजनशिप को यूजुअली वो उधर वो कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो सारे इंडियन पासपोर्ट्स वाले हैं, और एक बड़ी तादाद है, लगभग 1 करोड़ की। तो इन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए एक जो मैसेजिंग होती है, और जिस तरीके से आप देखें बांग्लादेश, ओमान, इजिप्ट, यूएई, ये तमाम वो मुल्क हैं जो G20 के मेंबर्स नहीं है, और खास तौर से आप देख लें कि सऊदी अरब खुद यूएई G20 का मेंबर है। तो इन तमाम चीजों को देख के ये पूरी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एक पूरा जो कंप्लीट पैकेज होता है, कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। कोशिश ये है कि मिस ना हो। ठीक है करना चाहिए। ठीक है सर, आ रहा हूं वापस। कर्नल संजीत
रोहित जी हमारे साथ हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, अमेरिका से क्या बातचीत होगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो बाइडेन लैंड करेंगे और माना ही जा रहा है कि सीधे वो प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे। 3-4 चीजें अहम हैं, एक यूएवी, दूसरा जेट इंजन्स, तीसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसकी, चौथा न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये 3 अहम बिंदु हैं भारत और अमेरिका के बीच में। देखिए, जो अभी रजत जी, जो अभी आज मीटिंग और कल जो मीटिंग है, हाँ। जो बाइडेन जी की और मोदी जी की, इसमें जो मुद्दे जब मोदी जी अमेरिका गए थे, जो मुद्दे वहाँ पे डिस्कस, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे आपने खुद बताया है, क्लाइमेट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, उसके ऊपर ड्रोन के ऊपर, इंजन्स के ऊपर, ये सब बातें होंगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा आज के दिन है वो यूक्रेन का है। तो जो कोशिश ये की जाएगी, जो डिक्लेरेशन होनी है जी समिट के बाद, उसमें ज़्यादातर देशों की सहमति हो और डिक्लेरेशन हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जहां तक ताल्लुक है ट्रेड का, वो तो हम जानते हैं। मैं आपको रोकूंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स के रूप में भारत और अमेरिका ने अच्छा काम किया है, ट्रेड हमारा बढ़ा है, लेकिन एक ट्रेडिशनल पार्टनर रूस भी हमारा है। मुश्किल वक्त में हमेशा रूस साथ खड़ा है। लोग हमेशा ये कहते हैं कि रूस आपका दोस्त है और अमेरिका बिजनेसमैन है, वो आपके साथ बिजनेस कर सकता है, दोस्त नहीं हो सकता। हालांकि ये थोड़ी चीजें बदली हैं कुछ समय में, लेकिन क्या कोई ऐसा डिक्लेरेशन आ सकता है जिससे रूस को एतराज हो? मुझे बहुत कम उम्मीद है। नहीं, कोई डिक्लेरेशन मुझे नहीं लगता है कि डिक्लेरेशन ऐसा आ सकता है। रूस को तो एतराज, अगर यूक्रेन के ऊपर रूस को कंडेम किया गया तो ऑब्वियसली रूस के तरफ से एतराज आएगा। हाँ। और ये भी दो राय नहीं है इसमें कि रूस हमारा हमेशा दोस्त रहा है। लेकिन रजत जी, अब वक्त बदल गया है और वक्त के साथ हमको अपनी सोच भी बदलनी होगी। क्योंकि अब अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, और ख़ास तौर पर जब से यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, रूस को जो है चीन के ऊपर निर्भरता उसकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो ये जो हमारे दिमाग में हमेशा था कि रूस हमारा दोस्त है, वो दोस्त है हमारा, पर वो दोस्ती कितने दिन तक चलेगी ये बहुत सोचने की बात है और बड़ी गंभीरता से सोचने की बात है। क्योंकि चीन और रूस का जो है नेक्सस, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होता जा रहा है। और हमेशा हम ये सोचते थे कि शायद अगर कोई चीज़ फॉल्ट लाइन हमारे में और चीन में होगी तो रूस हमारा साथ देगा, लेकिन इसके ऊपर दोबारा चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि हो सकता है कि रूस या तो न्यूट्रल रहे और हो सकता है या ठीक है, मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ा। मनीष, आ रहा हूं आपके पास। एक बार आसिफ रमीज जी के पास जाना। आसिफ जी, क्योंकि आपकी टिप्पणियां रहती हैं, आपकी नॉलेज भी है, मैं ये समझना चाहता हूं, क्या जो टकराव है चीन से और पाकिस्तान से, वो हिंदुस्तान को अमेरिका के करीब ले जा रहा है? और जो रूस और चीन की दोस्ती है इस मल्टी ऑर्डर वर्ल्ड में, वो रूस को हमसे दूर कर रही है? क्या ये माना जाए, जो बात सुजीत साहब कह रहे थे? देखें, इसमें बहुत ही सीधी सी बात है। पहली चीज ये है कि चीन और पाकिस्तान का जो आपका सवाल है, तो ये तो इसको अभी और क्या पहले से ही ये लोग इस बेस पे ज्यादा करीब आते हैं कि होता ना कॉमन एडवर्सरीज जो होते हैं, तो उसको बेस बनाकर कुछ लोग जो है बहुत करीब आ जाते हैं। जिसकी एक बड़ी मिसाल है चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती, और किस तरीके से जितने भी वहाँ पे BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरे और इंटरनल एक इशू, वो एक लंबा डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है। तो वो जो दोस्ती बहुत ज़्यादा जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि हिंदुस्तान का खास तौर से नेबरिंग कंट्रीज में अगर आप 2-3 लोगों को जोड़ के रखते हैं, 2-3 कंट्रीज को, तो उस वक्त आपको ये लोग थोड़ा, जब आप वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त ये लोग काम आते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग होती है, ब्लॉक्स बनते हैं। आप अगर रशिया और चाइना की जो बात कर रहे हैं, तो ये जरूर बात है कि अभी जो G20 है या G20, ठीक है, इसमें आप 60% से ज्यादा पॉपुलेशन की बात करते हैं, आप 75% से ज्यादा GDP और 85% से ज्यादा के आप ट्रेड की बात करते हैं। इतनी बड़ी जो एक इसकी अहमियत दिखाई जाती है, लेकिन इसमें आप देखें तो कहीं ना कहीं ये दुनिया, जितने भी लोग क्रिटिक्स हैं या जो एनालाइज कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें वेस्टर्न और जो अमेरिका का है वो आमतौर से ज्यादा कहीं ना इन्फ्लुएंस दिखता है। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं आपको ग्लोबल साउथ की, या फिर आप पैसिफिक पे जाके उधर चाइना की जो सिचुएशन बनती है, वहाँ पे फ्री और जो इस तरह की इंडो पैसिफिक को रखने की जब सिचुएशन बनती है, मैं आ रहा हूँ, तो वैसी इंडो पैसिफिक पे मैं आ रहा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट,
यूएसए से। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, जो बात कर रहे थे वो बात यही हो रही थी, क्या जो ये मल्टी ऑर्डर सिस्टम जो बाइपोलर होता था थोड़ा चेंज हुआ है, क्या रूस से जो हमारे रिश्ते हैं क्या उसमें फर्क आएगा? जो बाइडेन का यहां आना और उसके बाद चीन को लेकर संभवतः बातचीत होगी दोनों देशों में, तो क्या अमेरिका भी चाहेगा कि हिंदुस्तान भी एक कदम आगे बढ़े दोस्ती में, बिजनेस के साथ साथ दोस्ती में आगे बढ़े? क्योंकि जो ट्रेडिशनल और ट्रस्टेड पार्टनर था वो रूस था, लेकिन जो ट्रेड बढ़ा है, जो आत्मीयता बढ़ी है, वो अमेरिका के साथ बढ़ी है इस शासनकाल में। मेरे ख्याल से हम लोग एक बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग रूस को पुतिन समझ रहे हैं और चाइना को शी जिनपिंग। मेरे काफी रूसी पेशेंट है, उनको यूक्रेन अच्छा लगता है, उनको यूक्रेनियन भाषा समझ में आती है, उनका रिलीजन सेम है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, वो वोडका पीते हैं साथ में बैठ के, अच्छे लगते हैं रशियन और यूक्रेनियन लोगों एक दूसरे को। ये जो लड़ाई है, तो हम कहते हैं कि रूस 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 नहीं, अभी हम लोग पुतिन की बात कर रहे हैं। और जब चाइना की बात करते हैं, चाइना के भी लोग बहुत अच्छे हैं, अपने भारतीय लोगों जैसे है, अच्छे काम करते हैं, बूढ़ों का ख्याल रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम जब चाइना की बात करते हैं तो हम शी जिनपिंग की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब चाइनीज यही चाहते हैं कि जो शी जिनपिंग चाहता है। हम ये आशा करते हैं कि रूस और चाइना की जनता को भी हमारे जैसे लोकतंत्र का मजा लेने दे, कि भाषा स्वातंत्र्य है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, कुछ भी कह सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, अमेरिका ऑफ कोर्स चाहेगा ना कि भारत उसकी हेल्प करे, क्योंकि भारत का सबसे कि लोकतंत्र है। कौन से इतने लोकतंत्र है 1947 के बाद जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए, इंडिया का, इजराइल का, इंग्लिश स्पीकिंग है, लोग अच्छे हैं। तो अमेरिका तो ऑलमोस्ट चाहेगा ना कि भारत उनका थोड़ा बोझ कम कर दे दुनिया के सब लफड़े का। अभी जो भारत ने मुद्दा उठाया है अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का, वो कितना अच्छा आइडिया है। तो अमेरिका बहुत खुश होगा। तो नाम ही हम, और देखो जैसा कहा था, जो बिजनेस वाली बात होती है इंग्लैंड और अमेरिका में, नेपोलियन तो इंग्लैंड को कहता था दैट मिजरेबल नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, लेकिन वो शॉपकीपिंग अच्छा होता है अगर उसके साथ बिजनेस करो। जब मार्गारेट थैचर ने भी कहा था गार्बाचेव के बारे में कि दिस इज अ मैन आई कैन डू बिजनेस विद, तो बिजनेस तो अभी चालू है, दोस्ती बढ़ेगी अभी। डॉक्टर रवि, एक चर्चा और थी, क्योंकि हम लोग के बीच में होती है, आप अभी जुड़े हैं अमेरिका से, क्या कोई डिक्लेरेशन रूस और यूक्रेन युद्ध पर संभव है? क्या भारत इस बात को एफोर्ड करेगा कि हाँ कोई ऐसा डिक्लेरेशन आए जिससे रूस या फिर पुतिन नाराज हो? बिल्कुल संभव है। और मैं तो कह रहा हूं कि अच्छी बात है कि ना पुतिन साहब आए हैं ना शी जिनपिंग आए हैं। हाँ। हमने उनको इग्नोर किया, अच्छी बात है। मतलब अगर ठाकुर बलदेव सिंह गब्बर के साथ दोस्ती करना चाहता है तो जय और वीरू के घर पे आके क्यों करेगी ना? आप जय वीरू के घर पे आए हो तो जय वीरू कुछ बात करेंगे ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इंडिया ऐसा एकलौता देश है पूरे विश्व में जो रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता, और रशिया अमेरिका के बीच में समझौता कर सकता है, क्योंकि इंडिया एकमात्र देश है, उन्होंने रूस को टोका नहीं। सब लोग इंडिया पे बड़ा दबाव डाल रहे थे कि आप ये करो वो करो, भारत ने किया नहीं। वो बड़ा अच्छा मूव था, वेरी डिप्लोमेटिक मूव। तो रशिया के साथ हमने ब्रिजेस बर्न नहीं किए। तो जैसा न्यूट्रल पार्टनर होता है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्विट्जरलैंड को न्यूट्रल रखने में सबको दिलचस्पी थी, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में डील कर सकते थे, वैसा इंडिया न्यूट्रल है। तो जो विश्व गुरु कहते हैं या ग्लोबल लीडरशिप पे हमारे पंतप्रधान जो कदम उठा रहे हैं, तो एकमेव वर्ल्ड लीडर है जो रूस और यूक्रेन का समझौता कर सकता है। ठीक है, आ रहा हूं एक बार वापस अरविंद तेजावत जी के पास, लेकिन उससे पहले मनीष गौतम जी हमारे साथ। मनीष जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात हो रही है भारत अमेरिका के बीच में, साथ ही साथ ड्रोन्स की बात हो रही है, डाटा शेयरिंग की बात हो रही है, ये कितना उपयोगी होगा भारत के लिए? रजत जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जिस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमें अध्यक्षता मिली और जिस स्केल और इंटेंसिटी का एक्टिविटीज हम लोगों ने किया है, उसके कारण भारत निश्चित तौर पर ग्लोबल साउथ का वॉइस बन चुका है। और जो चीन का प्रयास था अब तक
कि यूनिपोलर एशिया, चाइना लेड यूनिपोलर एशिया, उसको भारत बहुत अच्छे से अब तक रेसिस्ट करके एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दील करने में सफल रहा है। अब इस पूरे परिदृश्य में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी का जो शेयरिंग है। वो आपको पता होगा कि हमारा जो तेजस विमान है वो अभी अमेरिकन इंजन F404 पे फ्लाई कर रहा है। हम अपना जो है स्वयं जो कावेरी इंजन है वो बना चुके हैं। इसका टेस्ट ट्रायल रशिया में चल रहा है। निश्चित तौर पर हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आज अमेरिका की भी मजबूरी है कि वह भारत के साथ अपने रक्षा जो रिश्ते हैं, जो डिफेंस रिलेशनशिप है, उसको नए ऊंचाई पर ले जाए। और ये जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर में ये दो देश अगर आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत जो है वो अमेरिका के जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसको भी बनाए रखने में मदद कर सकता है। ठीक है, आ रहा हूं अरविंद जी। अरविंद जी, जो नजर होगी, मैं एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, ऋषि सुनक साहब हैं, कई देशों के और राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा वो जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी होंगे। ये दो देश क्या करते हैं, इन दो देशों के बायलैटरल से क्या निकल के आता है? मुझे लगता है विश्व की और भारत की निगाहें यहीं पर होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि भारत तो आयोजक हैं, इसलिए भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मोदी साहब, उन पे तो पूरे विश्व की नज़र रहेगी ही। और एक दूसरा जो अभी सबसे ताकतवर राष्ट्र हैं वह अमेरिका है। हालांकि बहुत सारे ध्रुवों के बनने की कोशिश हो रही है, पर जैसा कि पहले पूर्व में अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत सारे द्विध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद में बहुत सारे पोलर बनेंगे, पर ऐसा हो नहीं रहा है। अब ऐसा लग रहा है, जो बहुत सारे डिप्लोमेट्स जो एजम्पशन है उनका, कि वह पूरी विश्व व्यवस्था दरअसल दो समूह में बट रही है। पहले अमेरिका और जो सोवियत संघ था उसका स्थान दो समूह ले रहे हैं। और भारत ये है कि भारत के साथ समस्या यह है कि उसकी जो बहुत सारी जो रक्षा निर्भरता है वह रूस पर है। तो अभी 20-25 वर्ष तक तो इस चीज़ की कोई संभावना नहीं है कि वह पूरी तरीके से अमेरिकी खेमे का हिस्सा बन जाए। इससे भारत का कोई फ़ायदा भी नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि चीन जैसा एक मजबूत राष्ट्र हमारा पड़ोसी है और हम लोग विश्व के उत्पादन का और अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा को कंट्रोल करते हैं। इसलिए किसी भी देश से संबंध खराब करना नहीं है। दरअसल डिप्लोमेसी ये नहीं होती है कि एक खेमे से जाके दूसरे खेमे में चला जाए। दरअसल दुनिया ये मानती है कि दो विचार है, साम्यवादी और उदारवादी। पर हम ये नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि साम्यवादी और उदारवादी विचारधारा के अलावा भी कोई तीसरी विचारधारा हो सकती है, और वो विचारधारा ये है कि सभी पूरा वसुधैव कुटुंबकम, सभी सुखी रहें, सभी विकास करें। और इसी की हम अगुवाई कर रहे हैं, जिसको विश्व मान नहीं रहा है। भारत वर्षों से कह रहा है कि हम दो विचारधाराओं में बटे हुए नहीं हैं। एक लाइन अलग भारत ने तय की। ठीक है, एक बार आसिफ साहब के पास, आसिफ रमीज जी के पास। आसिफ जी, ये जो बायलैटरल की तस्वीरें होंगी भारत और अमेरिका की, इससे क्या चाइना और कॉर्नर होगा? पाकिस्तान इफेक्ट क्या होगा और रूस इफेक्ट क्या होगा? तीन इफेक्ट समझाइए। देखें, जितना ज्यादा अमेरिका का रिलेशन भारत से स्ट्रांग होगा, हालांकि ये भी आप कह सकते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड, या फिर वो इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं ना, कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। और अमेरिका के बारे में तो बहुत सी बातें हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना इससे कुर्बत होगी, यानी क्लोजनेस आएगा, उतना ज्यादा चाइना, और अभी इससे पहले भी आपने सवाल किया, चाइना का चाहे रशिया से या पाकिस्तान से और ज्यादा करीब होना मतलब एक ऑब्लिगेशन हो जाए। अब ये जो आप देख रहे हैं कि अभी जो लोग बहुत अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं कि रशिया के पुतिन क्यों नहीं आए, क्या कोई और वजह है, इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद नहीं आए, या चाइना के जो ये है प्रेसिडेंट हैं वो इसलिए नहीं आए कि वो उधर अरुणाचल के इश्यूज नहीं। इसकी एक पहलू ये भी है कि किस तरह से अमेरिका का यहाँ पे रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है हिंदुस्तान से, और यूरोपियन कंट्रीज है उसका भी। तो इस चीज को देखते हुए ये जो दूरी है वो कहीं ना कहीं
ठीक है, वो अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव वो उनको भेज रहे हैं, या चाइना के प्रीमियर ली क्वान ये आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये उनकी मौजूदगी है, कॉन्सेंसस में इसका असर पड़ेगा। हो सकता है कि जैसे लास्ट टाइम एक जल्दी जल्दी में जो डिक्लेरेशन आया था, खास तौर से यूक्रेन के जब मुद्दे पे बात आती तो डिवाइडेड एक चीज रहती, यहाँ यूक्रेन और रशिया और ईस्ट और वेस्ट का एक बहुत बड़ा असर होता है। और आप जान रहे हैं कि जितना ज्यादा, हालांकि इंडिया और अमेरिका के बीच रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं, अभी इससे पहले देखें और अभी खुद इस चीज को जो बाइडेन ने भी समझा और अमेरिका की जो वहां की सरकार है, पूरी सरकार ने समझा। और इसकी ऐसे मैं मिसाल देता हूं कि ठीक है, यहाँ पे कल से शुरू होने वाले इस समिट में एक दिन पहले जो बाइडेन का यहाँ आना, 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना, तो उनकी टीम को भी इसका अंदाजा है कि हिंदुस्तान की क्या अहमियत है। और ऐसे मौके में जब चाइना और रशिया की एब्सेंस है वहां पे, मतलब प्रेसिडेंट जो वहां नहीं आ रहे, तो कैसे इस चीज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा वक्त देके बायलैटरल्स करके ज्यादा से ज्यादा डील करके कुछ ऐसा तरीका लगाया जाए कि हिंदुस्तान का सही इस्तेमाल करके इवन यूक्रेन और रशिया में भी कुछ पोजीशनिंग चेंज करवाई जा सके या कुछ दूसरे रास्ते निकाले जा सके। इसी सवाल को लेके जा रहा हूं डॉक्टर रवि गोडसे, अमेरिका से हमारे साथ। डॉक्टर रवि गोडसे, 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का ना हालांकि प्रतिनिधित्व आ रहा है, जयशंकर साहब साफ कह चुके हैं किसको भेजना है नहीं भेजना है ये देश तय करता है, वो यहां आकर क्या बोलते हैं, उनके विचार क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन पुतिन और जिनपिंग का G20 को एक मिस देना कैसे देखते हैं आप? देखो, पुतिन साहब की तो मजबूरी हम समझ सकते हैं। देखो, एयर इंडिया की एक फ्लाइट गई थी अमेरिका को और उसको सडनली लैंड करना पड़ा था बीच में इंजन ट्रबल के वजह से। तो पुतिन साहब के खिलाफ अभी 134 कंट्रीज में जो वारंट है वॉर क्राइम का, तो अगर वो फ्लाइट से आ रहे हैं और गलती से खुदा न करे किधर फ्लाइट को उतरना पड़ता है और वो कंट्री में उतरना पड़े उन्हें जिस कंट्री में उनके खिलाफ वारंट है, तो पुतिन साहब नहीं आ सकते। और एक तरह से ठीक है, क्योंकि अगर पुतिन साहब आते तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो वो नहीं आने वाले। और कोविड के टाइम हमको आदत हुई है ना, लोग जूम पे भी करते हैं। और जो शी जिनपिंग साहब मैंने जो पढ़ा है, थोड़ा इस पे आप रोशनी डालिए, मैंने पढ़ा है कि शायद कुछ ऐसा मामला था कि वो एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर भेजेंगे G20 के लिए, लेकिन शायद वो भी नहीं हो रहा है। नहीं, वो भेजेंगे, मुझे गारंटी है वो डेफिनेटली भेजेंगे, क्योंकि वो G20 को पूरा इग्नोर तो नहीं कर सकते, रशिया का रिप्रेजेंटेशन तो बनाना चाहिए। और शी जिनपिंग पता नहीं, अभी इंडिया का इतना अच्छा लीडरशिप चल रहा है, चाइना ने कितना पैसा डाला था अफ्रीका में, पोर्ट्स बांधे थे, रोड बांधे थे। चाइना का मतलब $2 ट्रिलियन का इकोनॉमी है अफ्रीका में, 10,000 चाइनीज कंपनी आर एक्टिव इन अफ्रीका, और उतना उन्होंने पैसा खर्च किया। और फिर अभी सब अफ्रीकन यूनियन भारत की तारीफ कर रहे हैं, तो चाइना के थोड़े पेट में उनको लगेगा ना कि क्या हमने कैसा हमको ये किया, इसलिए वो अच्छा नहीं किया उन्होंने, तो नहीं आ रहे। लेकिन एक तरफ से भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि अमेरिकन मीडिया में आपने पूरी न्यूज देखी, तो क्या वो कह रहे हैं कि बाइडेन साहब और शी जिनपिंग मिलेंगे G20 में, साइडलाइन मीटिंग में 1 to 1। तो एनीवे बाइडेन साहब ने पहले कह दिया था कि मैं कुछ शी जिनपिंग से सीधा मिलने वाला नहीं, 1 on 1। अगर वो आते भी है तो हम लोग जो मीटिंग में सब लीडर्स मिलेंगे वहां मिलेंगे, मतलब इंडिया होस्ट है ना अभी। बाइडेन साहब प्राइम मिनिस्टर के घर पे जा रहे हैं, तो एक तरह से अच्छा है कि चाइना नहीं आया तो। और हमने और अच्छा किया भारतीय मीडिया का, मुझे अच्छा लगा ये कि हमने इसकी न्यूज नहीं बनाए, नहीं तो पूरा न्यूज एक साइकिल बना देते थे। वो शी जिनपिंग ने क्यों आया, क्या उन्होंने अपमान किया, कि ये किया वो किया, स्नैप किया, छोड़ दो, उन्होंने इग्नोर ही किया। अरे आप आ नहीं रहे, हमको पता ही नहीं था आप नहीं आ रहे हो, तो ठीक है, ज्यादा बात अच्छी होगी अमेरिका और इंडिया की। और इससे साफ जाहिर है ना कि चाइना किस तरफ है, रशिया किस तरफ है, और G20 का फ्यूचर किस दिशा में है। ठीक है, आ रहा हूं पर कर्नल संजीत रोही जी के पास। रोहित सर, टेक अवे कैसे देखते हैं? हालांकि अभी शुरुआत हुई, मुझे लगता है पहली बायलैटरल की तस्वीरें हमने देखी है, लेकिन ये जो G20 है, इस G20 के बाद से विश्व स्तर पर भारत को देखने में कितनी चेंजेस आएंगे? जो एक स्तर है भारत का, क्या वो बिल्कुल बदल जाएगा? जो मेहमान यहां आ रहे हैं, जो G20 का आयोजन है, जो भारत मेजबान बना है, क्या यहां से जो एक परसेप्शन है भारत का, जो कि बदला है, मैं मानता हूं पिछले कुछ सालों में, वो और बदलेगा?
रजत जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो इंडिया का परसेप्शन है वो कुछ सालों में, मेरा ख्याल पिछले 4-5 साल में धीरे धीरे बदल रहा है। और ये G20 का जो समिट हो रहा है ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, और जिसका जो है हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। हम अपनी जो है हर चीज़ को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो हमारी मिलेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बात कर रहे हैं, वेमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और मॉडर्न हिसाब से साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ताकि डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिक्योर रखा सके। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये नए नए मुद्दे जो हम ला रहे हैं, भारत एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर देगा। और मैं ये पिछले कल भी मैंने जो है आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताया था कि भारत एक ऐसा बेंचमार्क सेट करेगा जिससे आने वाले जो जी समिट होंगे उनमें कंट्रीज को और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो है भारत के लिए बहुत सुनहरा मौका है। दुनिया के हालात ऐसे हैं जिसमें भारत एक दिशा दे रहा है, और वो दिशा जैसे गुरु दिशा देता है उस तरीके से दिशा दे रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ रजत जी जो मैं बोलना चाहता हूँ, इस जो जी समिट से जो हमारा थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये एक ऐसा है जिसमें जितने भी मुद्दे हैं उन सबको हम उसमें मिला सकते हैं। और उसमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, उसमें पूरी दुनिया को मिलके चलना, सब मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये एक ऐसा थीम है। मेरा ख्याल इस थीम के बाद कोई बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। रजत जी ठीक है, आ रहा हूं। मनीष आपके पास भी आ रहा हूं, डॉक्टर आसिफ के पास जाना एक बार। डॉक्टर आसिफ, जो पहले हमारी बातचीत हुई थी कि पहले 2 पोल्स में बटा हुआ था, कोई न्यूट्रल पोल नहीं होता था, लेकिन आपको लगता है कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जो डिप्लोमेसी भारत ने अपनाई, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध में हो, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, पश्चिमी देशों के साथ हो, खाड़ी देशों के साथ हो, उस देश जहां पिछले 30-40 सालों में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत का नहीं गया था, वहां रीच आउट करना, कोविड के समय उन देशों से बातचीत करना, वहां तक वैक्सीन पहुंचाना जो बिल्कुल इग्नोर थे। तो एक नया ऑरा भारत ने अपने लिए तैयार किया है। हो सकता है एक तरफ रूस हो, एक तरफ अमेरिका हो, एक तरफ चीन हो, लेकिन एक स्थान भारत ने भी पोस्ट कोविड अपने लिए तैयार किया है। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये एक बेमिसाल तरीके से जो भारतीय डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो फॉरेन पॉलिसीज में भारत ने, इंडिया ने जो एक जगह बनाई है, और हमने इस पे कई बार इस पे बातें करी है। हमने देखा है कि इस पे जब भी बात होती तो ये बात निकलती है कि 19, हालांकि मैं कभी भी कंपैरिजन पाकिस्तान से हिंदुस्तान का कई मुद्दे पे नहीं करता हूँ, क्योंकि वो अपना अलग मुल्क है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ता है। आप देखें कि कुछ ऐसी पॉलिसीज जो वहां पे चलती रही, फॉरेन पॉलिसीज, उसमें कितनी परेशानियां रही हैं। आज कुछ चीजें नजर नहीं आ रही, लेकिन आज वही भारत फॉरेन पॉलिसी पे मैं आने से पहले एक जरा सा बोलना चाहूंगा कि चांद पे जाके सूरज की तरफ का रास्ता भी दे चुका, और सारी दुनिया के सितारे आज भारत की धरती पे मौजूद हैं। क्या बात। तो ये तमाम चीजें जो है, आप ऐसे समझिए कि ये सारे लोग जो यहाँ भारत में आए, ये ऐसे नहीं आते, एक दिन की मेहनत से नहीं आते, और 360 डेज की मेहनत से भी नहीं आते। ये जो पूरी पॉलिसीज रही है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, जो एक पकड़ होती है, जो भारत ने साबित किया है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ही नहीं, पूरी दुनिया में जो एक इमर्जिंग लीडर की तरह, वर्ल्ड लीडर की तरह जो एक हिंदुस्तान ने अपनी जगह बनाई है, पूरी दुनिया की आज ऐसे ही नजर नहीं है। ठीक है, 1-2 लीडर्स नहीं आए, और वो लोग ये भी कहते हैं कि ये G20 हर साल कहीं ना कहीं किसी मुल्क में तो होता ही है। बिल्कुल सही है, किसी न किसी मेंबर कंट्री के अंदर तो होना ही है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने अकलमंदी से, जिस सूझबूझ के साथ इस कम वक्त में 10 महीने के अंदर स्मार्टली इस पूरे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है, इस 1 साल की प्रेसिडेंसी का, इसको ग्लोबल बनाया है। और आपने वैक्सीन मैत्री की बात करी, या आपने तमाम पोस्ट कोविड में जिस तरीके से भारत का रिलेशन इस गल्फ कंट्री से भी बना है, यहाँ से भी लोगों ने मदद की है और भारत ने भी मदद करी है। इसी को तो शेयर्ड इंटरेस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, मुझे लगता है कि हमारे इस पूरे साउथ एशियन रीजन में, या हमारे उस पूरे खित्ते में जिसमें हम अपनी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, चाइना की, उसकी दूसरी कोई मिसाल है नहीं। क्रिटिसाइज करने वाले कुछ भी ये बात आपने ठीक कही कि ये एक दिन का काम नहीं है, 2 महीने 2.5 महीने
महीने का काम नहीं है, ये पॉलिसीज का काम। जिस पॉलिसीज पे आप काम करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी का काम है कि आज दिल्ली चकाचौंध। ठीक है, मनीष आपके पास। मनीष, जैसा रमेश जी ने कहा, इस G20 में जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, मुझे लगता है एक चीज बड़ी कॉमन होगी, चंद्रयान के लिए और सूर्य मिशन के लिए भारत को मुबारकबाद हर देश देगा। मनीष गौतम, मैं आपके प्रश्न को सुन नहीं पाया, एक बार अगर मैं रिपीट करता हूं। मैं कह रहा हूं जो रमीज मैंने कहा, ये बड़ा कॉमन फिनोमेना होगा। जो भी राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधिमंडल आएगा दूसरे देश का, वो भारत को चंद्रयान और आदित्य मिशन के लिए मुबारकबाद जरूर देगा। निश्चित तौर पे। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। अरविंद तेजावत जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, निश्चित तौर पे। हाँ, आ रहा हूं सर, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रहा हूं। अरविंद तेजावत जी के पास चलते हैं। अरविंद जी, रक्षा क्षेत्र में हमने बात अमेरिका से करी, ऋषि सुनक साहब भी यहां पे हैं, वो कई बार तारीफ कर चुके हैं भारतीय सभ्यता संस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनसे क्या बातचीत होगी? ट्रेड को लेकर क्या बातचीत होगी? रक्षा के क्षेत्र की जहाँ तक बात है वो एक अलग है, क्योंकि उस पर जो भारत की जो रूस पे जो डिपेंडेंसी है, हाँ, वो जग जाहिर है। ऋषि सुनक साहब की भारतीयता का प्रश्न है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो बाकायदा मंदिर जाके टीका लगाने वाले व्यक्ति हैं, और उनकी जो पत्नी हैं वो तो पूरी तरीके से भारतीय है। हम जानते हैं वे बहुत बार यहाँ जो राष्ट्रपति भवन में भी आई है और बहुत ही एक आम भारतीय व्यक्ति की तरह वहाँ उपस्थित रही है, न कि ब्रिटेन के। तो उनकी भारतीयता को लेकर कोई शक नहीं है। कमला हैरिस हैं, तो बहुत सारे जो भारतीय मूल के लोग हैं वो विश्व में अपना नाम कर रहे हैं। और एक तरीके का यह मैसेज भी है कि देखो भारत में क्षमता है। और मैं सहमत हूँ आसिफ साहब की इस बात से कि यह पाने में हमें बरसों की मेहनत लगी है, और इसकी प्रशंसा बहुत सारे अफ्रीकन राष्ट्राध्यक्ष भी कर चुके हैं। मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में समेटना चाहूँगा। वो ये है कि वो ये कहते हैं कि देखिए हम अफ्रीकन लोगों ने क्या लिया, हमने उनका खाना ले लिया, हमने उनकी वेशभूषा ले ली, हमने उनकी बाकी सारा चीज़ें ले ली, पर वहाँ से टेक्नोलॉजी नहीं ली। और भारत को देखिए, भारत ने उनकी सभ्यता और संस्कृति का एकदम बिल्कुल ही मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें आपका पहनावा नहीं चाहिए। मोदी साहब का पहनावा देखिए, वो कोट पैंट में नहीं है। तो ये एक तरीके से जो भारतीयता पे जो गर्व करने वाली जो चीज़ हैं वह हमें दिखाई दे रही है। वहाँ के खाने में देखिए, और इस G20 सम्मेलन में संदेश भी यही साफ साफ है। ठीक है, ठीक है। रवि गोडसे जी, आ रहा हूं एक बार कर्नल संजीत रोही जी के पास। जी, देश का तो नाम होगा, अब आप इंडिविजुअल आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो डिप्लोमेसी रही है उनकी, जिस तरीके से उन्होंने देशों में रीच आउट किया है, इस G20 से जो कद है देश का तो बढ़ेगा ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना बढ़ेगा? अब अपना प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सर, मैं ये कह रहा हूं देश का कद तो बढ़ रहा है, देश का गौरव बढ़ रहा है, लेकिन जो डिप्लोमेसी का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है, उसमें कितना इजाफा होगा इस G20 से, जो वर्ल्ड लीडर वाली इमेज है, विश्व गुरु वाली? बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने पिछले 8-9 साल में जो काम किया है, मेहनत की है, रीच आउट किया है उन्होंने कंट्रीज में, उन कंट्रीज में गए हैं जहां पे कोई भारत का प्रधानमंत्री गया नहीं, या गया तो बहुत पहले गया। और जो फॉरेन पॉलिसी है, और मैं इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट जो कांग्रेचुलेट मैं अपने विदेश मंत्री को भी, जयशंकर जी को करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक बहुत ही मंजे हुए डिप्लोमेट हैं और वो इस फील्ड में बहुत दिनों से हैं। तो उन्होंने जो ये पॉलिसी करी है, जैसे आप ये लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, ठीक है, उसके बाद हम जो है ग्लोबल साउथ के साथ हम मिलना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ की हम वॉइस बनना चाहते हैं। पहली दफ़े 125 कंट्रीज़ के, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ के हमने सम्मेलन किया, जिसमें हमने उनकी प्रॉब्लम समझी और उन प्रॉब्लम्स को अब हम G20 में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन, 50-55 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से वो निर्भर है दूसरे देशों के ऊपर, उनकी आवाज़। तो मोदी जी की जो सबसे अच्छी डिप्लोमेसी वो रही है कि वो बजाय इसके कि जो डेवलप देश हैं उनकी तरफ बढ़ने के, वो उस तरफ गए हैं, उन देशों की तरफ जो कि
हिंदुस्तान की तरह कुछ साल पहले जैसे हिंदुस्तान था वैसे ही लो ठीक है। इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज थी। ठीक है सर, डॉक्टर रवि गोडसे जी के पास। डॉक्टर रवि गोडसे, ये तीन बड़ी चीज G20 में आप क्या देखना चाहते हैं? एक देखना चाहता हूं कि बाइडेन और मोदी साहब डिक्लेयर करें कि ट्रेड डील हो गया है। ठीक है। दूसरा, रशिया और यूक्रेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट आया तो बहुत मजा आएगा। और तीसरा, अगर सीधा चाइना नहीं भी है तो चाइना के इन्फ्लुएंस के जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में, जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट होता था चाइना में, अभी पैंडेमिक में देखा है वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन इतना रिलायबल नहीं है, चाइना करेंसी मैनिपुलेशन करता है। तो क्या मैन्युफैक्चर इंडोनेशिया में आ सकता है? ये तीन, और जो आप कह रहे थे कि पहले की भारत की कद कैसी ऊंची हुई है, तो ये जो आप जानते हैं मीडिया तो परसेप्शन की बात होती है। पहला यूएस मीडिया में न्यूज क्या आता था कि G20 में बाइडेन, पुतिन और शी जिंग और दूसरे कई देशों के लीडर्स मिले। अभी कौन से भी न्यूज में न्यूज क्या आएगा कि इंडिया, चाइना, अमेरिका मिल गए। तो ये परसेप्शन की बात होती है कि लोग हमारे तरफ देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि चंद्रयान से अभी ग्लोबल ब्रांड हो गया है इंडिया। इतना नहीं कि भेजा तो भेजने वाले थे, लेकिन जितना कम पैसे में भेजा ना, वो एक छोटा सा मूवी था हॉलीवुड। ठीक है सर, माफी के साथ रोक रहा हूं सर, वक्त की थोड़ी कमी है, कमर्शियल ब्रेक लेना है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप आए इंडिया न्यूज में। अब से कुछ देर बाद जो बाइडेन लैंड करेंगे और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। नॉन स्टॉप कवरेज G20 पर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर।